Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone in this place knows a certain truth. हम सब जो इस जगह पे मौजूद है, हम सबको सत्य पता है. Even those online who are watching us. जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी. And this is a truth that we often forget. और ये एक ऐसा सत्य है जो हम भूलते हैं. That we are a spirit. कि हम आत्मा है. Even though we have a flesh, but we are a spirit. हमें एक देह है परंतु हम आत्मा है. And the power is all in the spirit. और जो सामर्थ्य है वो आत्मा में है. Now when we forget that we are a spirit, और जब हम ये बात भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, then whatever we do or whatever we say it from the flesh. तो हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं वो देहिक करते हैं. But there is no power in that. परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं है. So we should always remember, तो हमें हर बार ये याद रखना है whatever we are doing to God, we should do it in the spirit. कि हम परमेश्वर के लिए जो भी कर रहे हैं वो आत्म रीति से कर रहे हैं. And when we come to the communion time, और जब हम इस प्रभु भोज की विधि में हम भाग लेते हैं, we are not just following a tradition. हम लोग एक जगिक परंपरा को नहीं दर्शा रहे हैं. We are not just doing following some formula. हम लोग ऐसे किसी एक फॉर्मूले के पीछे नहीं भाग रहे हैं. But whatever we do, we should do it in the spirit. परंतु हम जो भी करते हैं वो आत्मा में करते हैं. So keeping that in mind, तो ये ध्यान रखते हुए we'll just go to scripture. हम लोग वचन में जाएंगे. We'll go to 1 Corinthians हम लोग पहला करंती chapter 11. 11वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय, And we'll read from verse 27. और हम 27वें वचन के आगे से पढ़ेंगे. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. Many people have misinterpreted this verse. यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वचन को ध्यान से नहीं समझा. And they say that if you are sinful, then you should not take communion. और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम पापी हो तो तुम्हें प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए. At this point, I want to remind you. इस दर पे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, Are you a sinner or are you free from sin? क्या आप पापी है या फिर पाप से मुक्त हो चुके हैं? You can be either one of the two, not both. आप इन दोनों में से एक हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते. So if Jesus died for your sins and you have accepted his payment, then you are free from sin. तो अगर प्रभु यीशु आपके और हमारे पापों के लिए मर गया है और आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो आप पाप मुक्त हो चुके हो. But if you do not accept it with your heart, with your spirit, परंतु आप अगर प्रभु यीशु को अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से नहीं अपनाओगे, then you are still in your sin. तो आप फिर से पाप में पड़ते हो. So then you need to repent of your sin and then come to the Lord. फिर आपको उस पाप का प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास आना होता है To take part of communion. कि प्रभु भोज की विधि में हम भाग ले सके. So whenever we, even sometimes as believers, we know the truth, तो हर बार ऐसे होता है कि हम विश्वासी जिन्हें सत्य वचन पता है, but yet we participate in the Lord's Supper फिर भी हम प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं without understanding this truth and without walking in this truth. हम ये सत्य को समझ के परे जाके हम लोग इसमें भाग लेते हैं. And even in the Bible there are examples. और बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, Like the church of Corinthians. जैसे कोरिन्थी की कलीसिया. And this is exactly where we are reading from. तो ये हम जो वचन पढ़ रहे थे वो उसमें से पढ़ रहे हैं That the people who were partaking in the Lord's Supper, कि जो लोग हैं जो प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं they were not there for the Lord. वो वहां पे प्रभु के लिए नहीं थे. They were there for the food and drink. वो वहां पे उस खाने के लिए और उस दाखरस को पीने के लिए वहां पे मौजूद थे. Some were having their dinner before the others could even arrive. कुछ लोग तो अपना खाना बाकी लोगों के आने से पहले ही खा चुके थे.
and they had finished their supper, और वो खा चुके थे calling it the Lord's Supper. और प्रभु भोज कहते थे उसको. But that is not so. बट ये ऐसा नहीं है. When we come to the Lord's Supper, जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं, we are not there for the food and drink. हम लोग वहां पे खाने या पीने के लिए नहीं आते. We are there for a very important reason. हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीज के लिए वहां पे मौजूद होते हैं. Look, we are always there we are always a spirit. Even if we forget it, we are a spirit. ये बात आप याद रखिए कि हम लोग हमेशा आत्मिक रीति से ही जीते. हम आत्मा में ही है. अगर हम भूल भी जाए तो भी हम आत्मा में ही होते हैं. And when we do things without remembering that we are a spirit, और जब हम कुछ ऐसी चीजों को करते हैं ये बिना जाने कि हम आत्मिक है, they become like activities without power. तो ये एक ऐसा कार्य हो जाता है जिसमें सामर्थ्य बिल्कुल नहीं होता. But it's very important to understand that when we do things in the spirit, पर हमको ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जब हम कोई भी कार्य आत्मिक रीति से करते हैं, then we are doing it with the power of God. तो हम ये परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ करते हैं. So even when we partake of the Lord's Supper, तो हम अभी प्रभु भोज की विधि में हिस्सा लेते हैं, then we have to understand why we are doing it. तो हमें ये बात समझना है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं. Because we are in the spiritual realm, if we see, we are connected to God. तो हमको ये जानना है कि हम आत्मिक जगत से कनेक्ट हो चुके हैं परमेश्वर के द्वारा. We are one with God. हम परमेश्वर से एक हो चुके हैं. And whatever we say or whatever we do it with God. और हम जो भी काम करते हैं या जो भी कहते हैं बोलते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य से करते हैं. So whatever we confess and whatever we declare is being done in the presence of God with the approval of God. तो हम जो भी चीज बोलते हैं या करते हैं वो परमेश्वर के अप्रूवल से ही करते हैं. So when we declare that this is the Lord's body and this is the blood of Jesus, even though we are taking a piece of bread and a juice, तो हम अगर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये प्रभु की देह है और ये प्रभु का लहू है, ये जानते हुए कि हम लोग एक रोटी के टुकड़े को ले रहे हैं और दाखरस के थोड़े से प्याले को ले रहे हैं, we are connecting ourselves in the spirit to God. हम अपने आप को परमेश्वर के साथ आत्मिक जगत में जोड़ते हैं. And we are actually remembering what Jesus did for us. और हम ये बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है. And Jesus himself said this, और प्रभु यीशु ने खुद ही हमसे ये कहा है कि do this in remembrance of me ये मेरे स्मरण के लिए किया करो until I come again. जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. So we are not just doing this as a tradition, तो हम लोग ये चीज परंपरा के रीति से नहीं कर रहे हैं, but we are doing it to remember first of all the sacrifice of Jesus. तो हम ये इसलिए कर रहे हैं पहले तो ये कि प्रभु यीशु के उस बलिदान को स्मरण करते हुए, And secondly, to proclaim the Lord's coming. और दूसरी बात ये हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु की वापसी का. So when we are connected in spirit to God, तो जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मिक जगत से जोड़ते हैं, all the power of God is flowing through us. परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारे अंदर से निकलता है. So everyone who is partaking in the Lord's Supper, तो हम में से जितने भी लोग परमेश्वर के प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, we are one in spirit with God at that moment. हम लोग परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर के साथ एक हो चुके उस समय पे. And nothing that is not of God can remain in our bodies. तो जो भी परमेश्वर से नहीं है वो हमारे शरीर में हमारी देह में वास नहीं कर सकता. That is why there is no lack, इसलिए कोई घटी नहीं है, there is no sickness, कोई बीमारी नहीं है, and there is no difficulty that can reign in our bodies. और कोई ऐसी कठिनाइयां भी नहीं है जो हमारे शरीर में वास करेगी. That is why we should be sickness free. इसलिए हमको चंगाई प्राप्त हो गई है. We should be prosperous. हम लोग उन्नति प्राप्त कर चुके हैं. And we should walk in the spirit of God. और हम लोग परमेश्वर की आत्मा में हम लोगों को चलना है. That is exactly what it means to examine ourselves. ये एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को परखना है. Which is what is written in verse 28. यही बात है जो 28वें वचन में लिखा है. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. And verse 29 says, For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
और 29वां वचन ये कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। Remember that if you are in one spirit with God, आप एक ये चीज याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो चुके हो, then when you are partaking in the Lord's Supper, तो आप जब भी प्रभु भोज में भाग लेते हैं, your body becomes His body. आपकी देह उसकी देह बनती है। Now, was there any sickness in in Jesus' body? प्रभु यीशु की देह में कोई बीमारी थी क्या? Then you should look at it as this is not possible. A sickness cannot be in my body too. तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, आपको देखना है खुद को कि मेरे शरीर में भी कोई भी बीमारी वास नहीं करेगी। Therefore, we should never be weak. तो हम लोगों को कमजोर नहीं होना है। That's what verse 30 says. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. ये जो 30वें वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। So today when we partake of the Lord's Supper, तो आज जब हम प्रभु भोज की विधि में हिस्सा लेंगे, let these not just be words that we are saying, तो ये जो हम बोल रहे हैं इसे एक शब्द नहीं होने चाहिए, but let us believe it in spirit that we are united with God. तो हम इस बात का विश्वास करेंगे कि हम परमेश्वर से आत्मा में एक हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, And His power is inside of us. और उसकी जो सामर्थ है वो हमारे अंदर वास करती है। So whatever you believe should not be in your body, you can cast it out right away. तो आपके शरीर के अंदर जो भी ऐसी कठिनाई है, जो भी बुरी बात है, जो आपको विश्वास है, तो उसको अभी के अभी इसी वक्त निकाल दीजिए। And if there is any kind of lack in your life, और जो भी आपके जीवन में घटी हो, you can command it to leave you. आप उसे धमकाइए कि निकल जाए। And that is the real meaning of taking part in the Lord's Supper. और यही इस बात का अर्थ है प्रभु भोज के विधि में भाग लेना। You are become one with God आप परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं and have an intimate relationship with Him. और आपके साथ आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन चुका है। So with this understanding, let us partake of the Lord's Supper. तो यही समझ को लेके हम प्रभु भोज के विधि में जाएंगे। Thank you, Jesus, that you have given us your body and your blood so that we could be free from this world and become one with you. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी लहू और आपकी देह जो आपने हमारे लिए दी प्रभु, कि हम प्रभु मुक्त हो गए इस जगत रीति से प्रभु। And we confess that we will no longer be influenced by the world, और हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हम प्रभु इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इस जगत रीति से प्रभु, and that we will not allow sickness to reign in our body. और हम प्रभु कोई भी बीमारी को हमारे शरीर में वास नहीं करने देंगे। You have prospered us, आपने हमें समृद्ध किया है and we are healthy and whole और हम चंगाई पा चुके हैं प्रभु, because of what you have done for us. कि आपने जो हमारे लिए किया उसके वजह से प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Let us take the body and blood. हम लोग भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. आज कौन पहली बार आया है? सो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी ब्रदर? नहीं, अंकल के जस्ट पहले लास्ट में ब्लू शर्ट में जो ब्रदर हैं, आप भी फर्स्ट टाइम आए? चर्च तो फर्स्ट टाइम आए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्टिल हम वापस से KOHM की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। सो एक जोरदार तालियों के साथ हम आप सभी, थैंक यू जीसस। सो हम खुश हैं कि आप आए हैं। ज़रूर से जब मीटिंग ख़त्म होगा सो हमारे जो पास्टर जी है गणेश रेड्डी, आप ज़रूर से उनसे मिल के जाइए। आमीन। सो हम खुश हैं, आप हमारे साथ सहभागिता कर सकते हैं। सो लगे हाथों में ये बता दूं, सिस्टर आप भी फर्स्ट टाइम आए? पीछे सिस्टर पहली बार आए या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। प्रेज गॉड, वेलकम आपको भी, है ना। ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ इसके साथ साथ कि सैटरडे को भी हमारा एक बाइबल स्टडी होता है ना, सभा रहता है बाइबल स्टडी का, जो कि यूजुअली घर पे रहता है। सो आप में से कोई और भी जो
इस सभा का सहभागिता नहीं कर पा रहे, साथ में नहीं मिल पा रहे, सो अगर आप सैटरडे को अवेलेबल हैं सो आप सैटरडे को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आमेन। सो मीटिंग के बाद आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हमारा सभा जो सैटरडे का है वो एक घर पे फिक्स नहीं होता, रोटेशन में 4-5 घर है। सो उसके हिसाब से आपको भी आप भी इनवाइटेड हैं, सो आप ज़रूर से आइए। आमेन। यस। सो कितने जनों ने आज इंजॉय किया प्रेज एंड वर्शिप, है ना? आई एम श्योर इतना एंजॉय किया। मेरे को एक्चुअली हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, बट इसलिए थोड़ा हम फुल खुल के हम एंजॉय नहीं कर पाए, बट सीरियसली ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो। आमेन। यस। सो थैंक यू सो मच हमारे प्रिय ब्रदर मनोज ब्रदर, जो हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना? और अभी तो प्रेज और वर्शिप दोनों में मज़ा आता है। हालेलुया। एक जोरदार ताली हो जाए उनके लिए, ताकि वो प्रेज लेते रहें और हमें एंजॉय कराते रहें। आमेन। हालेलुया। सो यस, इसके अलावा हमारा जो भी मीटिंग्स है, स्पेशली हमारा जो संडे का सभा है, ये रिकॉर्ड किया जाता है और ये अपलोड किया जाता है हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। सो आप ये रिकॉर्डिंग्स वापस सुन सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग है वर्शिप की, प्रेज एंड वर्शिप, वो उसका प्लेलिस्ट अलग है, वचन का प्लेलिस्ट अलग है, चर्च सर्विस के नाम से है। सो आप ये वीडियोस वापस सुने, वचन को सुने, है ना? नोट्स बनाइए और आप ये वीडियोस दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि यीशु का राज्य बढ़े। आमेन। यस। आमेन। सो आई थिंक बेसिक है। और किसी को टेस्टिमनीज, गवाही अगर आपको बांटनी है, सो आप हमारे पीछे जो वॉलंटियर्स है, सुनित्रा सिस्टर है, टीना सिस्टर है, आप उनसे मिल सकते हैं, है ना? तो मीटिंग के बाद आप अपनी टेस्टिमनीज, गवाहियाँ बांट सकते हैं। आमेन। यस। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस। उससे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे राइट हैंड पर, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पर ऑफरिंग बॉक्स है और उधर QR कोड भी है। जैसा आपको पवित्र आत्मा चलाते हैं, मीटिंग के बीच में आपको जैसा भी लगता है, या मीटिंग के बाद आप बीच बो सकते हैं, है ना, प्रभु के राज्य में। तो QR कोड भी है, साथ में स्क्रीन के नीचे भी QR कोड दिख रहा होगा। सो जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है, स्क्रीन के नीचे QR कोड होगा, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं और प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। इसका फल आपको ही मिलेगा। आमेन। 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 सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस। सो प्रभु के, है ना, एक आशीषित बेटे हैं, है ना, जो हमारे साथ ये बांटने वाले हैं। सो क्या आप रेडी हैं? यस। तैयार हैं कि आप सभी से प्रभु बात करेंगे? आमेन। आमेन। यस। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए ब्रदर क्लिफर्ड का, और ट्रांसलेशन के लिए आशीष ब्रदर का। थोड़ा तालियां ज़्यादा। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord. Everybody had a good week. Everybody. Hallelujah. The Lord is so good to us. Thank you, Jesus. I enjoyed the praise. I enjoyed the worship. It was amazing. Can we all just stand up and worship the Lord one more time? Hallelujah. Thank you, Lord. Lift our hands to the Lord. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू
यहाँ पर कर हालेलुया 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 Thank you, Lord. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाथ उठा के गाएंगे हालेलुया 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 यीशु राजा हालेलुया हालेलुया We worship you, Lord Jesus. आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड, महिमा करते हैं खुदा, जय जयकार करते हैं आपकी। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, कहिए उनसे, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 केवल आपकी आराधना हो लॉर्ड, केवल आपकी महिमा हो प्रभु, केवल आपकी जय जयकार हो प्रभु। योग्य केवल आप ही हो स्तुति के, सारे महिमा के योग्य केवल आप ही हो, सारे आराधना के योग्य केवल आप ही हो लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ग्लोरी टू द लैम। थैंक यू जीसस। Glory, glory.
Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. हाथ उठा के गाएंगे महिमा 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 तुझको यीशु आपकी महिमा केवल आपकी लौट महिमा महिमा तुझको तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर महिमा गाइए महिमा यीशु आपकी महिमा तुझको महिमा महिमा यीशु आपकी लौट महिमा केवल आपकी महिमा तुझको तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर तू है सिंहासन पर तू है सिंहासन पर Thank you, Lord. और पिता परमेश्वर आज भी हम वादा करते हैं कि सारी महिमा हम आपको देंगे प्रभु। सारी स्तुति सारी आराधना जो भी आप करने वाले हो इस जगह पे प्रभु, जो भी आप करोगे प्रभु महान कार्य इस मंडली में प्रभु, हम सारा गौरव सारी महिमा सारी स्तुति केवल आपके पुत्र यीशु को ही देंगे प्रभु। हालेलुया यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड का, धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड का, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं लॉर्ड, आमेन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. The presence of the Lord is so beautiful in our midst. प्रभु की उपस्थिति बहुत आनंदित रूप से इस जगह पर है. And I believe that the Lord will touch each and every one of us tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें से हर एक को छुएगा. And this week the Lord was preparing me for Sunday. और इस पूरे हफ्ते परमेश्वर मुझे आज के सभा के लिए तैयार कर रहे थे. And I have a word from the Lord for 3 people in the church. और मेरे पास परमेश्वर की ओर से चर्च कलीसिया के 3 लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है. And after we are done with the sermon, और वचन का प्रचार होने के बाद में I'm going to tell those 3 people what the Lord told me. और उन 3 लोगों को मैं बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है उनके बारे में, उनको बताने के लिए. Okay, and those 3 people are so that you start preparing your heart to receive from the Lord. और वो 3 लोग अपने हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए. Okay, one is Brother Sam. पहला है भाई सैम. One is sister. Yeah. And one is your mom, right? Sister. जोगदान आंटी. These 3 people God showed me, and after the sermon, I would like to tell you all what the Lord told me about you all. तो आप आपके हृदय को तैयार कीजिए और सभा के अंत में परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. Isn't it awesome that the Lord starts showing things in the spirit? क्या कितना अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर आत्मा में हमको चीजें दिखाता है. And that just edifies the body of Christ. और जिससे जो परमेश्वर की देह है, जो कलीसिया है, उसकी उन्नति होती है. I believe in the days to come that we are going to move in a greater prophetic realm. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में हम भविष्यवाणी के अगले स्तर पर हम काम करेंगे. Now, at least in Pune, what I have seen is, I'm taking all the local churches, even the mainline churches. तो पुणे के बहुत सारे कलीसिया में मैंने ऐसा देखा है. God has gifted our church with a prophetic mantle. परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को भविष्यवाणी के वरदानों से भरा है. And we see all the fivefold ministry functioning in the church. आमेन. और परमेश्वर की 5 जो बुलाहट है वो हम कलीसिया में काम करते हुए देखते हैं. I mean, like, nothing to be boasting about, but this is purely the grace of God upon our lives. ये घमंड करने की बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो ये सारी चीजें हमारी कलीसिया में है. So this is the only church that we see that all the fivefold ministry function. ये इकलौता चर्च है जहां हम परमेश्वर की 5 जो बुलाहट है उसको हम काम करते हुए देखते हैं. Just like the book of Acts. जैसे प्रेरितों के काम में जैसे हुआ वैसे. And the Lord wanted the church to be just like this. और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की कलीसिया वैसी ही हो. Hallelujah. हालेलुया. Because God gave the fivefold ministry to the church, to the body of Christ. क्योंकि परमेश्वर ने जो 5 बुलाहटें हैं उसकी कलीसिया को दिया है, उसकी देह को दिया है. Because most of the churches that I have seen is it's only the pastor who functions. बहुत सारे कलीसिया में मैंने देखा है कि केवल जो पास्टर है वो केवल काम करते हैं. And there may be prophets in the church, but I don't know, they've not been asked to minister at times. और कलीसिया में भविष्यवक्ता होंगे भी, लेकिन बहुत बार उनको वो मौका नहीं मिलता उनको प्रचार करने का, उनको बांटने का. You see, there has to be a prophetic voice in the church, otherwise the church is blind. कलीसिया में एक भविष्यवाणी का वचन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कलीसिया अंधी है. Prophets bring the voice of the Lord to the church. भविष्यवक्ता परमेश्वर की वाणी को कलीसिया में लेकर आता है. And a prophet can see what the pastor cannot see in the church. और भविष्यवक्ता वो चीजें देख सकता है जो पास्टर नहीं देख पाते. In fact, all the fivefold ministry has to function in the church. इससे मैं तो ये कहूंगा कि 5 जो बुलाहट है परमेश्वर की वो एक कलीसिया में काम करनी चाहिए. And if this fivefold offices function in the church is edified. और अगर ये 5 बुलाहटें अगर कलीसिया में काम करती है तो कलीसिया की उन्नति होती है. Hallelujah. हालेलुया. Aren't you glad that we are a part and a member of this church? क्या हम खुश नहीं है कि हम इस कलीसिया के भाग हैं? Hallelujah. हालेलुया. You know, I tell you something, nothing to be boasting about. The day the Lord has brought me into the house, I am so blessed.
मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैंने इस कलीसिया से जुड़ा, उस दिन से मैं आशीर्वादित हुआ। God has made every member of this church a great blessing to my life. इस कलीसिया का हर एक जन मेरे लिए एक आशीर्वाद का कारण है। Because I had heard the Lord telling me that now, I'm just being very transparent before you all. 22 years I had not been to any church. मैं आपको सही से बताऊंगा कि 22 साल तक मैं किसी भी कलीसिया का भाग नहीं था। Can you imagine 22 years? How did the Lord sustain me? It's a miracle. तो 22 साल तक परमेश्वर ने मुझे कैसे संभाले रखा, एक चमत्कार है ये। And so when I met Sister Alicia, और जब मैं सिस्टर अलीशा से मिला, she was the one who introduced me to the church. उन्होंने मुझसे मेरी इस कलीसिया से मुलाकात करवाई। So, and to be very honest, I had twice, the first 2 times when I came, I had just come to test the waters. मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊंगा कि जब मैं पहले 2 बार आया तो मैं केवल परखने के लिए आया था कि ये कैसा है, कैसे ये कलीसिया है। तो मैंने सोचा था कि अगर वो लोग वही चीज बिलीव करते जो मैं बिलीव करता तो ही मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। So I thought if they believe what I believe, only then I will join, otherwise I won't join. So I remember the first time when I ministered, it was a cell meeting, right, Pastor? तो पहली बार जब हमने प्रचार किया तो एक सेल मीटिंग में मैं प्रचार किया मैंने। And then I used some words of Andrew Womack. और मैंने कुछ एंड्रू वोमैक के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। I still remember it was wall to wall Holy Ghost. और ये ऐसे पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा में जा रहा था, इस प्रकार से था। And then we all met. I met Brother Manoj and everybody. और फिर मैं भाई मनोज से और सबसे मेरी मुलाकात हुई। And all these guys, they discovered that he's also listening to Andrew Womack. और बाद में पता चला कि ये लोग भी एंड्रू वोमैक को सुनते हैं। Then I said, Lord, this is what I wanted. तब मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, हाँ मुझे इसकी जरूरत थी। And then still, I was asking, Lord, do you really want me to join? और फिर भी मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, क्या आपकी सच में इच्छा कि मैं इनसे जुड़ूं? It took exactly 1.5-2 months for me to join. 1.5 से 2 महीना लगा मुझे इस कलीसिया से जुड़ने के लिए। I had a wrestling match with the Holy Ghost. मेरा पवित्र आत्मा के साथ में युद्ध हो रहा था। And then finally I said, yes, Lord, I'll go, and you want me to go, and I'll join. And I know that you're going to make everybody a blessing to me and me a blessing to the church. तो फिर मैंने कहा पवित्र परमेश्वर, ठीक है, मैं अभी इस चर्च से जाऊंगा। यहाँ पर हर एक मनुष्य जो है वो मेरे लिए एक आशीर्वाद का कारण बनेगा और मैं एक आशीर्वाद बनूंगा इस चर्च में। So when Alicia introduced me to the church, she introduced me as Clifford Sir. तो जब सिस्टर अलीशा ने मेरी मुलाकात चर्च के लोगों से कराई, कलीसिया से कराई, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ये क्लिफर्ड सर है। Because we were working in the same college. क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। All right. Now the whole church calls me sir. तो इसलिए पूरा चर्च अब मुझे सर ही बुलाता है। Okay. Even Sam's mom and dad, they call me sir. सैम के माता पिता भी मुझे सर बुलाते हैं। So one day I told Brother Sam. फिर एक दिन मैंने भाई सैम से कहा, Instead of calling me sir, सर मुझे सर बुलाने के बजाय why don't you call me seer? मुझे सियर बुलाओ। That would be much better, right? Hallelujah. हालेलुया। Wonderful. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, today we're going to learn something about the Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। I used to always, I heard about the Spirit of God from many churches, many people, and it had to do only with the gifts and His power and the anointing. तो मैंने बहुत से कलीसिया में पवित्र आत्मा के सामर्थ के विषय में, उसके चमत्कार, उसके गिफ्ट के विषय, वरदानों के विषय में सुना। They called Him it. उन्होंने पवित्र आत्मा को एक चीज करके रूप में संबोधित किया। So I used to always hear sometimes ministers saying it. तो मैंने कुछ बार सुना है कि जो प्रचारक है वो पवित्र आत्मा को एक चीज के रूप में बुलाते हैं, पुकारते थे, or a gift, या फिर एक तोहफे के रूप में, वरदान के रूप में उसको पुकारते थे, बुलाते थे, as if He was a package. कि जैसे कि वो एक कोई पैकेज है, कोई गिफ्ट है, कोई तोहफा है। The Holy Spirit is not a gift. पवित्र आत्मा तोहफा नहीं है, वरदान नहीं है। He is neither a fire.
वो आग भी नहीं है, He is neither a cloud. वो बादल भी नहीं है, He is neither a storm. He is neither a storm. अच्छा वो तूफान भी नहीं है। The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, He is a glorious person. वो एक महिमान्वित व्यक्ति है। Now, what makes me a person? मुझे एक व्यक्ति क्या है जो मुझे एक व्यक्ति बनाता है? It's not my physical body that makes me a person. मेरा शरीर जो मेरी देह है वो मुझे व्यक्ति नहीं बनाती। What makes me a person is my will, my emotions and my intellect. Makes me a person. मुझे मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि वो मुझे एक व्यक्ति बनाती है। So the Holy Spirit is not limited to only His gifts. तो पवित्र आत्मा केवल उसके वरदानों तक सीमित नहीं है। The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Tell your neighbor, the Holy Spirit is a person. अपने पड़ोसी से कहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। You know God the Father is a person. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता एक व्यक्ति है? In our minds, we know that when I say Father, that means there is a person who is seated on the throne and who is listening to me. तो मेरे मन में मुझे ये पता है कि जब मैं पिता अब्बा पिता करके बुलाता हूँ तो एक व्यक्ति है जो सिंहासन पर बैठे हैं, Who is listening to me? जो मुझे सुनते हैं, Who is seated on the throne. जो उस सिंहासन पर विराजमान है। Then I know that there's another one who is seated on the throne at God's right hand. That's Jesus. मुझे और एक चीज पता है कि परमेश्वर के दाहिनी और एक व्यक्ति बैठे हैं, वो है यीशु मसीह। He also is a person. वो भी एक व्यक्ति है। Having eyes of fire, hair of wool. उनकी आंखें अग्नि है, उनके जो बाल है वो ऊन के हैं। We read it in the scripture, the disciples touched him. हम वचन में पढ़ते हैं कि शिष्यों ने उसको छुआ। So when we see Jesus, we know that he is a person. तो जब हम यीशु करके पुकारते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है। But when it comes to the Holy Ghost, लेकिन जब पवित्र आत्मा के बारे में बात आती है we don't know what to make of him. तो हम ये नहीं जान पाते कि उसको क्या कहे, क्या समझे, Because nobody has seen the Holy Spirit. क्योंकि किसी ने पवित्र आत्मा को नहीं देखा। But the scripture calls him, he is a person. लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। You know, when in the Old Testament, when the prophets, they had to go to God the Father. तो जब पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता थे उनको अगर जाना था तो पिता के पास उनको जाना पड़ता था। The prophets of the old had to go to God Almighty for advice, for counseling. तो जो पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे उनको किसी विचार विमर्श के लिए परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ता था। And then he left. और जब वो जाते थे Then God the Son came on the earth. जो परमेश्वर पिता गए उसके बाद यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र धरती पर आए। The Word became flesh and he dwelt among us. तो जो वचन है उसने देह का रूप लिया और हमारे बीच में उसने वो रहा, हमारे बीच में वास किया। He moved on the face of the earth for 33.5 years. और इस धरती पर 33.5 साल तक वो चल रहे थे। People saw him walking, healing, touching and delivering. और लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है वो लोगों को चंगा कर रहे थे, उनको स्पर्श करके लोग चंगे हो रहे थे। Then a time came that he had to leave and go to be with the Father. फिर एक समय आया कि यीशु मसीह को ये धरती छोड़कर परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ा। After that, उसके बाद में the Holy Ghost came. पवित्र आत्मा आया। As per the book that you hold and I hold, उस पुस्तक के अनुसार जो आपके और मेरे हाथों में है, we call the Bible. हम उसको बाइबल कहते हैं। You and I, we are supposed to go to the Holy Spirit for counseling. आपको और मुझे, हम सबको सलाह लेने के लिए पवित्र आत्मा के पास जाने की जरूरत है। We got to go to the Holy Spirit for advice. हमें सलाह लेने के लिए पवित्र आत्मा के पास जाने की जरूरत है, Because he is the one who's been given to us by the Lord Jesus Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Paul mentioned in 2 Corinthians chapter 13, the last verse, it's a very famous verse. पौलुस ने जब दूसरे कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 13, the last verse. दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका 14वां वचन जो आखिरी का वचन है, उसमें पौलुस ऐसा कहता है, He says, the grace of our Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
and the love of God और परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now और and forever. पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। The grace of our Lord Jesus Christ यीशु मसीह का अनुग्रह and the love of God और परमेश्वर का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit be और- with you all. और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। When did we see the grace of God? हमने परमेश्वर का अनुग्रह कब देखा? When did we see the grace of our Lord Jesus Christ? हमने कब यीशु मसीह का अनुग्रह देखा? When He died for you and for me on the cross. जब वो क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरा, When He shed His blood for you and for me. जब उसने आपके और मेरे लिए उसका लहू बहाया। When did we see the love of God? परमेश्वर का प्रेम हम कब देखते हैं? When God Almighty sent His Son Jesus to die for you and for me on the cross. जब परमेश्वर ने उसके बेटे को आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, तब हमने परमेश्वर का प्रेम देखा। That's the grace we saw of the Lord Jesus Christ and the love of God that we saw. इस प्रकार से हमने परमेश्वर का यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम हमने देखा। But the third part, लेकिन जो तीसरी बात है, saints, listen to me very carefully. Please don't get disturbed. ध्यान से मुझे सुनिए। This is the place where most of the people in the body of Christ, they are lagging. यही एक चीज है जो तीसरी बात है, उसमें कलीसिया बहुत पीछे है। We talk to the Father. हम पिता से बात करते हैं, We even talk to the Son. हम यीशु मसीह से पुत्र से भी बात करते हैं, But it's very rare that we talk to the Holy Ghost. लेकिन बहुत ही क्षणिक होता है जब हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं। And He is the only one who is in charge of the body of Christ. और वही है जो इस परमेश्वर की कलीसिया का इंचार्ज है। Hallelujah. हालेलुया। Remember, saints, He is a person. याद रखिए, वो एक व्यक्ति है। He is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, He has a personality. उसका एक व्यक्तिमत्व है। God the Father is a person. परमेश्वर पिता व्यक्ति है, God the Son is a person. पुत्र परमेश्वर का पुत्र व्यक्ति है, God the Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I would like to demonstrate this on the stage. मैं ये दिखाना चाहूंगा इस स्टेज पर। I would like to call Brother Sam. Yeah, you can stand on my right. Yeah. Now, with all reverence, Brother Sam is Jesus. पूरे आदर के साथ में मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि भाई सैम यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। He has beard also. उनके पास दाढ़ी भी है। Okay. Only that he doesn't have a long hair like a Nazarene. उनके केवल बड़े बाल नहीं, नाजरी के समान। All right. And Brother Ashish is the Holy Ghost. और भाई आशीष पवित्र आत्मा को दर्शा रहे Now हैं। listen to this very carefully. This is very interesting. ध्यान से सुनिए इस चीज को। Brother Sam is Jesus भाई सैम यीशु को दर्शाते हैं and Brother Ashish is the Holy Ghost. और भाई आशीष पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। And I am a person who is lost in the world, a sinner. और मैं ऐसा मनुष्य हूँ कि जो ऐसा है जो उसके पापों में खोया हुआ है। Now the Holy Spirit's job is to bring me to Jesus. पवित्र आत्मा का काम है कि इस खोए हुए मनुष्य को यीशु के पास लाना। Saints, listen. If you have not been brought to Jesus Christ by the Holy Spirit, you are not born again. You have never known Him. याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा ने आपको यीशु के पास नहीं लाया है तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। If the Holy Spirit has not brought us to the Lord Jesus Christ, we know a historical Jesus. अगर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के पास आपको नहीं लाया है तो हम केवल यीशु मसीह का इतिहास जानते हैं। Because the Holy Spirit is the only one who brings us to Christ Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें यीशु के पास लेकर आते हैं। My God, I feel the anointing so beautiful in the house. हालेलुया, Thank you, प्रभु का Jesus. अभिषेक को मैं महसूस कर पा रहा So हूँ। He जीसस, is the होली स्पिरिट, Holy Spirit. वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं और भाई आशीष में पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। Now, the Holy Spirit's job is to bring me to Jesus. तो पवित्र आत्मा का काम है कि खोए हुए अविश्वासी को यीशु मसीह के पास लेकर आना। Now, He is the one who's going to bring me to Jesus. तो पवित्र आत्मा है जो मुझे यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। Because I don't know my Savior. क्योंकि मैं मेरे उद्धारकर्ता को नहीं जानता हूँ। I don't have the ability to know Him. मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं मेरे उद्धारकर्ता को जानूं। I am born as a sinner. मेरा जन्म एक पापी के रूप में हुआ है। I am cut off from the life of God. मैं परमेश्वर के जीवन से अलग हुआ हूँ। I am a child of the darkness. मैं अंधकार की संतान हूँ। I can never know Him. मैं कभी भी यीशु मसीह को नहीं जान सकता। So what happens? तो क्या होता है?
this person who is the Holy Spirit, तो ये जो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा है he is always there with me. वो मेरे साथ हमेशा है। Before I could get born again. मेरा नया जन्म होने से पहले वो मेरे साथ में है। Now I'm lost in the world. मैं अभी संसार में भटका हुआ हूँ, I'm living in sin. मैं पाप में जी रहा हूँ, I'm living in darkness. मैं अंधकार में जी रहा हूँ। Alright, so this person who is the Holy Spirit, तो ये जो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा है who is there with me, जो मेरे साथ है, he starts telling me. वो मुझसे बात करना शुरू करते हैं। Now, brother, you got to tell me only one thing before you can bring me to Jesus. Okay, you're going to say, you need Jesus, you need Jesus, you need Jesus, you need Jesus. Okay, I'm lost in sin. Keep on saying. मैं पाप में पड़ा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। You got to say it. You need Jesus. You need Jesus. Keep on saying. You need Jesus. You need Jesus. I'm lost. मैं भटक गया हूँ पूरा. Keep You on saying. need Jesus. You need Jesus. आपको यीशु की जरूरत है। Yes, You मैं need पूरा- Jesus. मुझे पता नहीं, मैं You need अंधकार में हूँ, Jesus. मैं You अंधकार need में हूँ. Jesus. और You अभी- need yeah, Jesus. and now this person, और अभी ये जो व्यक्ति who's the You need Holy Jesus, Spirit, who जो says पवित्र आत्मा है जो कहता है कि आपको यीशु की जरूरत है, आपको यीशु ये बार-बार आपको यीशु बोलेगा की जरूरत है, कि गुरु या बार-बार बोलेगा कि आपको यीशु की जरूरत आपको है, यीशु की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है, और जो मुझे बोल रहा है बार-बार कि आपको यीशु की जरूरत है, आपको वो यीशु की आता जरूरत है है, यीशु की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है, और आपको मुझे यीशु की जरूरत है, आपको यीशु से मिलाता है. आमेन। ओके, और जैसे स्टैंड नेक्स्ट टू मी, जैसे वो मुझे यीशु से मिलाता है, As soon as he makes my meeting with Jesus, मेरी आंखें खुल जाती है. my eyes are opened. यीशु का सामर्थ मुझे स्पर्श करता है. The power of Jesus touches me. और मैं उनको बोलता हूँ, अरे यीशु, मैं आप कहाँ पे थे इतने दिन? And कहाँ then I पर? say, Lord Jesus, where were you till now? मैं इतना खुश हूँ कि आपको मिला. मैं I am so happy that I found you, मुझे आपने पापों से मुक्त किया. that you delivered me of my sins, आपने आपका लहू बहा के मुझे क्षमा किया. that you shed your blood for me and forgave me. ओ यीशु, अभी बिल्कुल जा रहे हैं, मेरे साथ में ही रहना है, मेरे साथ में ही रहना है. Lord Jesus, don't leave me. मेरे साथ Be में with रहना me. है. Be हाँ, with me. Be मेरे- with me. कितने लोगों ने ऐसे बोला कि यीशु के मेरे साथ में ही रहना है, मेरे साथ में ही How रहना many है. of you said, Jesus, stay with me, be with me? Alright. Now, यीशु बोलते हैं, Then Jesus says, अब मैं जा रहा हूँ. now I am going. और यीशु जाने को लगते हैं. Just keep on going. And ओ then- यीशु, don't यीशु जाना नहीं, प्लीज प्लीज Jesus, प्लीज don't प्लीज. go, please don't go, Please, please जाना don't go, नहीं, मेरे please साथ don't में ही go. रहो, मेरे साथ में ही Please रहो. be with me. और यीशु, yes, come here, show me your hand. Then Jesus, मैं बोल रहा हूँ कि यीशु जाना नहीं. यीशु I am saying, Jesus, don't leave me, don't leave me. पॉइंट आउट करते हैं पवित्र आत्मा के पास में, बोलता है कि वो तेरी मदद करेगा, वो मेरे जगह पे आएगा, वो Amen. तेरी सांत्वन करेगा. Amen. और ये बोल के प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं. And then Jesus points to the Holy Spirit, tells that He is the comforter, He will be with you. और यीशु चले जाते हैं. And then Jesus leaves. जब यीशु चले जाते हैं ना, When Jesus leaves, उन्होंने मुझे वादा किया कि वो मेरे साथ में अनदर कंफर्टर देंगे. Amen. He promised me that I am sending you another comforter. I am giving you another comforter. Who will be there with me all the time. जो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा. Who will be there with me and comforting me all the time. जो मेरे साथ मेरी सांत्वना हमेशा करेगा. Now Jesus goes to be with the Father and sits on the right hand. और यीशु मसीह पिता के पास जाते हैं, उनके दाहिनी ओर बैठते हैं. And just because I don't know the Holy Ghost, and I don't know what to make of him, और क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता कि मैं पवित्र आत्मा का क्या करूं. I forget that the Comforter is always there with me. मैं भूल जाता हूं कि जो सांत्वन देने वाला है वो मेरे साथ हमेशा बना रहता है. And then I start crying, oh Jesus, why did you leave me? Where have you gone? Why did you leave me alone? You shouldn't have gone. You should have been with me only. फिर मैं रोता हूं कि यीशु मसीह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तू मेरे साथ रहता तो अच्छा होता. And the Lord sitting in heaven is saying that, why is he screaming at the top of his lungs? Doesn't he remember that I told him that he'll be there with you forever? He's the comforter who's there with you forever. He's your guide, he's your comforter, he's your teacher, he's your leader, who'll be there with you forever. आमीन. फिर यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन से बैठकर देखता होगा, कहता होगा ये क्यों चिल्ला रहा है. मैंने उसको नहीं बताया कि पवित्र आत्मा तेरे साथ रहेगा, वो तेरा सांत्वन करेगा, तेरा मार्गदर्शन करेगा, तो ये तेरा वो शिक्षक होगा, वो तेरे साथ हमेशा बना रहेगा. मैंने उसको बताया तो था, फिर ये क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है. I will give you another comforter, मैं तुम्हें और एक सांत्वन देने वाला दूंगा, just like him. यीशु के समान सांत्वन देने वाला.
Now the Holy Spirit is always there with me, अब पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा बना रहता है and I forget that He's there with me. और मैं भूल जाता हूँ कि वो मेरे साथ है। I stop fellowshipping with Him. मैं उसके साथ सहभागिता करना बंद कर देता हूँ। Saints, that's the reason Paul said that the fellowship of the Holy Spirit be with you all. इसीलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। What do you mean by fellowship? सहभागिता का मतलब क्या है? Fellowship does not mean that I'm making request, सहभागिता का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे केवल विनती करूं nor am I making some praise. या फिर मैं उनसे केवल प्रार्थना करूं। Fellowship means I'm having a dialogue exchange. सहभागिता का मतलब है कि मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, I'm just talking to Him. मैं उनसे बात कर रहा हूं। How a husband and wife talks together. पति और पत्नी कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। If they stop talking to one another, there'll be a big gap. अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो उनके बीच में काफी बड़ी दरार होगी। Bitterness can develop in the heart. कड़वाहट उनके दिल में प्रवेश करेगी। That's the reason communication with husband and wife is very important. इसीलिए पति और पत्नी के बीच में बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Start communicating with your husband and wife if you are not doing it. अगर आप आपके पति और पत्नी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो तो वो करना शुरू कर दीजिए। So the more you fellowship with your husband and wife, you get to know each other much better. तो जितना ज्यादा आप उनसे बात करोगे, उनके साथ सहभागिता करोगे, तो आप उनको जानोगे अच्छे से। So Paul is telling us to fellowship with the Holy Spirit. यहाँ पौलुस बता रहा है कि पवित्र आत्मा के साथ तुम सहभागिता करो। So when I fellowship, what am I doing? जब मैं सहभागिता कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? So I'm talking to the Spirit of God. मैं परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा हूँ। I said, wonderful Holy Spirit, I'm so glad that you're there with me. मैं उनसे कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा तू इतना अद्भुत है, मैं धन्यवादित हूँ कि तू मेरे साथ है। I'm so glad that Jesus gave you to me. मैं धन्यवादित हूँ कि यीशु मसीह ने तुझे मुझे दिया। I'm glad that you'll never leave me nor forsake me. मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Saints, the word of God declares that now we have received not the spirit of the world but the spirit which is of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें मिला है, That we might know the things that have been freely given to us by God. कि जिससे हम जाने कि परमेश्वर की ओर से हमें मुफ्त में क्या क्या दिया गया है। These things also we speak not in the words which man's wisdom teaches but with the Holy Ghost teaches. ये सारी बातें हम मनुष्य की बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से, उसकी बुद्धि से हम बता रहे हैं। Comparing spiritual things with spiritual. आत्मिक बातों की तुलना आत्मिक बातों से करते हुए। Then the word of God declares that the natural man doesn't receive the things of the spirit. और वचन कहता है कि जो नैसर्गिक मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं कर सकता, Because he cannot know them because they are spiritually discerned. क्योंकि वो बातें वो जान नहीं सकता, क्योंकि उन बातों को केवल आत्मा से हम जान सकते हैं। And the Holy Spirit who's there with us is ready to reveal everything about Christ Jesus and the word freely. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की बातें प्रकट करेगा मुफ्त में। Spirit of God is there with you and in you. परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है और आपके अंदर रहता है। It's just 1 second that you got to talk to Him. केवल 1 सेकंड लगेगा आपको उससे बात करने के लिए। Continue. The Lord wants us to be fellowshipping with the Holy Spirit every moment of our lives. परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक क्षण पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। Remember, Jesus said, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. यीशु मसीह ने कहा कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य में लेकर चलेगा। He will take out what is mine and He will reveal it to you. और उसने कहा कि वो मुझसे लेगा और वो तुम्हें देगा और प्रकट करेगा। He will not glorify Himself, but He will glorify Christ Jesus. वो खुद की महिमा नहीं करेगा, लेकिन वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। How many want Christ Jesus to be glorified in your life? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में हो? When I say glorified means मैंने raising the dead and casting out demons. कहा यीशु मसीह की महिमा यानी जो मरे हुए को जिंदा करना और जो बीमारों को चंगा करना, वो महिमा है यीशु मसीह की। Look to the Holy Ghost. अगर आपको ये करना है तो पवित्र आत्मा की ओर देखिए। Start fellowshipping with the Spirit of God. उसके साथ सहभागिता करना शुरू कीजिए। And the moment you tell the Spirit of God, Holy Spirit of God, और जिस क्षण आप कहोगे कि पवित्र आत्मा reveal Christ Jesus to me, यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट करो, the Spirit of God will magnify Christ Jesus in your life. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। There are a lot of people who try to know the Lord Jesus Christ with their own strength, with their prayers, with their fasting, whatever they do. और बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रकटीकरण का, यीशु मसीह को जानने का प्रयत्न करते हैं उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके उपास के द्वारा। You and I, if we want to know the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is there with you to reveal Him. पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा कि यीशु मसीह कैसा है, वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। The Word of God declares that the Spirit of God is the one who quickens us the Word of God. वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन को हमारे लिए जीवित करता है। Can you imagine Jesus Himself needed the Holy Spirit so much?
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह खुद को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी? The Lord Jesus Christ never performed any miracle when he was an infant. जब यीशु मसीह जब छोटे थे तब उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किए। You got to understand, Jesus was complete human and complete God. आपको ये समझने की जरूरत है, यीशु मसीह पूर्ण तरह से एक मनुष्य भी थे और पूर्ण तरह से परमेश्वर भी थे। You know, before the Lord could come on the earth, there was a conference in heaven. यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुआ And the Father, Son and the Holy Ghost, they planned our salvation in heaven. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने हमारे उद्धार का एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। And the Father told the Son, Son, would you go on the earth and die for humanity? तो पिता ने पुत्र से कहा कि क्या पुत्र तू इस धरती पर जाकर इस पूरे संसार के लिए मरेगा, बलिदान देगा? The Word of God was ready to become flesh. परमेश्वर का वचन देह को लेने के लिए तैयार हुआ। And the Word of God, that is Christ Jesus, looks at the Father and said, और परमेश्वर का वचन जो पुत्र है उसने पिता की ओर देखा और कहा, Yes, Father, I will go. हाँ पिता मैं जाऊंगा, But to make me flesh, I need your Holy Spirit. लेकिन मुझे इस देह को धारण करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। Because if the Holy Spirit doesn't do it, I cannot become flesh. अगर पवित्र आत्मा नहीं कर सकता तो मैं देह को धारण नहीं कर सकता, Because the scripture says the Word was made flesh. क्योंकि वचन कहता है कि वचन को देह धारण करना पड़ा। The Word was made flesh. वचन को देह धारण करना पड़ा। How did the Word become flesh? By the Holy Ghost. कैसा वचन ने देह को धारण किया? पवित्र आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit is the one who made Jesus, the Word of God, in flesh. पवित्र आत्मा ने जो परमेश्वर का वचन है उसको देह का रूप दिया। He didn't perform any miracle apart from the Holy Spirit. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बिना कोई भी चमत्कार नहीं किए। When Mary was all confused, she said that I'm a virgin, how can I give birth to a child? मरियम ने जब सुना तो उसने कहा कि मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ, मैं तो कुंवारी हूँ। And the angel said the Holy Spirit will come upon you. और स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा And the power of the highest shall overshadow you. और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर प्रकट होगी। And that which is born in you is not born of any man, but he's born of God. और तेरे द्वारा जो उत्पन्न होगा वो मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होगा। Hallelujah. हालेलुया। So the Holy Spirit is the one who brought Jesus into this world. तो पवित्र आत्मा है उसने यीशु मसीह को इस धरती पर लाया। The Word of God declares in the book of Matthew that Jesus, he is the child of the Holy Spirit. मत्ती की पुस्तक में वचन कहता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पुत्र है। At the age of 30, 30 साल का होने के बाद when the Lord got baptized in the river Jordan, और जब यीशु मसीह का यरदन नदी में बपतिस्मा हुआ, the scripture says that heavens were opened वचन कहता है कि स्वर्ग खुल गया and the Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। See, without the Holy Spirit, Jesus could do nothing. पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते थे। Don't tell me that the Lord, when he was there on the earth, before the Holy Spirit could come upon him, he didn't see people sick and dying. ये आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जब 30 साल यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 साल होने के बाद हुआ तो 30 साल होने से पहले यीशु मसीह ने बीमारों को देखा, बीमार लोगों को मरते हुए नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। He must have felt sad about them. उन लोगों को देखकर यीशु मसीह को बुरा लगा होगा कि ये लोग बीमारी में मर रहे हैं। And he's waiting when the Spirit of God will come upon him. और वो राह देख रहे थे कि कब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आएगा। At the age of 30, 30 साल की उम्र पर when he got into the rivers of Jordan, जब यरदन नदी पर उसका बपतिस्मा के लिए वो गया, the Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया From that moment, the miracles began. और उस क्षण से चमत्कार होना शुरू हुए। Hallelujah. हालेलुया। Because the scripture says Jesus returned in the power of the Spirit. क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य में वो वापस आया। Jesus returned in the power of the Spirit. यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ के साथ में वो वहां से वापस आया। Now, saints, can you imagine if Jesus could not do anything without the Holy Ghost? How about you and me? अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते थे तो आप और मैं कैसे क्या कर सकते हैं? Jesus could not perform any miracles apart from the Holy Spirit. यीशु मसीह कोई भी चमत्कार पवित्र आत्मा से अलग होकर नहीं कर सकते थे। Only when the Spirit of God came upon him, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, the dead were raised, मुर्दे जीवित हुए, the lepers were cleansed, जो कोढ़ी है वो शुद्ध हुए, blind started seeing. अंधे देखना शुरू किए। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power.
कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषिक्त किया। He didn't do anything apart from the Holy Spirit यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं किया, because he was a complete man. क्योंकि वह पूरा मनुष्य था। He laid all his glory, every power, everything that he had in heaven. He came as an empty man. वो जब इस धरती पर आया तो उसने उसकी सारी महिमा और सारी सामर्थ को स्वर्ग में रखा और खाली होकर वो इस धरती पर आया। He needed the Holy Spirit to help him out. उसको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। So when the Holy Spirit came upon him, और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, demons started fleeing in terror. दुष्ट आत्माएं डर के भागने लगी, The dead were raised. मुर्दे जीवित हो गए, The sick were healed. बीमार चंगे हो गए। Everything that Jesus did was by the power of the Holy Spirit. जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। You know, I think that अगर पवित्र आत्मा ने किसी के साथ में सबसे ज्यादा एंजॉय किया ना, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ में एंजॉय किया। पता आपको? I think the Holy Spirit enjoyed the most is with Jesus. You know why? Because Jesus was 100-200% obedient to the Holy Spirit. क्योंकि यीशु मसीह 200% पवित्र आत्मा क्या उसकी आज्ञा मानने वाला था। अगर हमको पवित्र आत्मा ने बोला दाएं जा, हम लोग बाएं जाते। If Holy Spirit tells us to go left, he will go right. And the Holy Spirit will not force you. और पवित्र आत्मा आपको फोर्स नहीं करेगा। He is a thorough gentleman. वो एक जेंटलमैन है, वो आपको दबाव नहीं डालेगा। The Holy Spirit will lead you. He will not push you. वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको धक्का मारकर जबरदस्ती लेकर नहीं चलेगा। The scripture says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो लहू है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जिसने उसको चढ़ाया, उसको अर्पित किया, वो क्यों कर हमारे मरे हुए विवेक को शुद्ध नहीं करेगा। His birth was by the power of the Spirit. उसका जो यीशु मसीह का जन्म है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ। The miracles he performed was by the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किए। He also shed his blood by the power of the Holy Spirit. उसने उसका लहू पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बहाया। Because the scripture says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Holy Spirit offered himself without spot to God, purge my conscience from dead works to serve the living God. क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसका लहू पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने खुद को पिता के पास बिना किसी धब्बे का चढ़ाया, तो वो लहू क्यों ना हमें शुद्ध करेगा। His birth, his miracles, his death. उसका जन्म, उसके चमत्कार और उसकी मृत्यु, यीशु मसीह के सारी चीजें। Not only that, केवल इतना ही नहीं, but also he was raised by the power of the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मुर्दों से जिलाया। Can you imagine the Spirit, the Lord Jesus Christ totally dependent upon the Holy Spirit for his birth, for the miracles, for his death, and also for him to be raised from the dead. क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह इतना निर्भीत थे उसके पवित्र आत्मा के ऊपर कि उसके जन्म, उसके चमत्कार, उसकी मृत्यु और उसको मरे हुए से जिलाने का काम भी पवित्र आत्मा ने किया उसकी सामर्थ के द्वारा। If the Son of God needed the Holy Spirit so much, how much more you and me, saints of God? कि परमेश्वर का पुत्र को पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत थी, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा की। You know, many a time why we fail is because we have not fellowship with the Holy Spirit and we have never asked him to help us. हम क्यों बहुत बार हम चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगी। Because we think we know it all. क्योंकि हमको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। Just because you know the word, that does not mean that you know it all. अगर हमें वचन पता है उसका मतलब ये नहीं कि हमें सब पता है। For everything you need the Spirit of God to help you. हर एक चीज के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Saints, he is our helper. वो हमारा मददगार है, He is our advocate. वो हमारा वकील है, He is our strengthener. वो हमारे सामर्थ्य देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। When I read the scripture, when I study the scriptures, जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ, the Spirit of God is the one who reveals Christ Jesus to me from the scriptures. परमेश्वर का आत्मा उसके वचनों को मेरे लिए जीवित करता है, मुझे समझाता है। You know, now when I study the scriptures, अब मैं जब परमेश्वर के वचन का अभ्यास करता हूँ, I ask the Spirit of God to quicken me the word of God. तो मैं उससे कहता हूँ कि पवित्र आत्मा आप तेरे वचन को मुझे जीवित कर, मेरे लिए जीवित कर। Make Jesus real to me in the scriptures. यीशु मसीह को मेरे लिए रियल कर। So when I study the scriptures with the help of the Holy Spirit, the Bible comes alive. और जब मैं पवित्र आत्मा की मदद से जब वचन को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ, तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवित हो जाता है। So it won't be only, I've read few chapters just to satisfy my religious guilt.
और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अध्याय पढ़े कि मैं जो धार्मिक हूँ, मैं खुद को अच्छा महसूस करूँ कि हाँ मैंने आज वचन को पढ़ा है. हाँ, आज मैंने बाइबल पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, बाबा हो गया. Yeah, I read 2 chapters today. That's enough. Boy, if the Spirit of God is there upon you, you will read and study the Word of God for hours and for days and for months. You won't get boring. अगर आप पवित्र आत्मा की मदद करोगे तो मदद से आप जब वचन पढ़ोगे तो आप घंटों तक परमेश्वर का वचन का केवल अभ्यास करते रहोगे. You just 1 second, just very close from the help that you receive from the Holy Spirit. आप 1 सेकंड दूर हो पवित्र आत्मा की मदद लेने से. So when I study the scriptures, I say, Holy Spirit of God, reveal to me Christ Jesus in the Word. जब मैं वचन का अभ्यास करता हूं तो मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मेरे लिए सत्य बना, वास्तविक बना. Remember saying the Word of God was written by the Spirit of God. परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है. All scripture is given by divine inspiration by the Spirit of the living God. हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है. That's why it's called the sword of the Spirit. इसलिए उसको आत्मा की तलवार कहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. So the Word of God can be quickened by the Spirit of God when you ask Him to do it. तो परमेश्वर का वचन उसके आत्मा के द्वारा हमारे लिए जीवित होगा अगर हम उसकी मदद लेंगे तो. So when we start fellowshipping with the Lord, it will take time to make the bond very stronger. But as you start today, little by little, you'll come to know His mind. जैसे हम परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता करेंगे तो हमारा रिश्ता एक घना रिश्ता होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे हम आज से लेकर थोड़े थोड़े कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा के साथ हमारी घनिष्ठता इतनी होगी और वो हमें पूरे वचन जीवित करके देगा. Now, the book of Romans chapter 8 verse 26 says, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां वचन उसका 8वां अध्याय उसका 26वां वचन कहता है that the Spirit of God helps in our weakness. कि परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है. For we know not what we should pray for as we ought. क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है. But the Holy Spirit Himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर के प्रार्थना करता है. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the perfect will of God. कि जो मनों का जांचने वाला है वो जानता है कि आत्मा की इच्छा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है. Saints, when we pray, जब हम जब प्रार्थना करते हैं, for example, when I pray, उदाहरण के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, now please look at me for a moment. मेरी ओर देखिए. When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, I don't look at the Holy Spirit and say, Holy Spirit, give me. मैं पवित्र आत्मा की ओर देखकर ये नहीं कहता कि पवित्र आत्मा मुझे दे. He is not the one who gives you. पवित्र आत्मा वो नहीं है, जो पवित्र आत्मा नहीं है वो देगा आपको. I ask the Spirit of God, help me pray. मैं पवित्र आत्मा से कहता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए कि मैं प्रार्थना करूँ. Because the Bible declares He helps in our limitations, in our weaknesses. क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है. For we know not what to pray as we ought. हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए हम नहीं जानते. But the Spirit of God Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. लेकिन पवित्र आत्मा खुद से वो हमारे लिए आहें भर के प्रार्थना करता है. So when you ask the Spirit of God, help me pray, the Spirit of God starts praying for you. और जब हम ऐसा कहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू करता है. How many people want every prayer that they make to be answered? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी हर एक प्रार्थना का उन्हें उत्तर मिले. The key is let the Spirit of God pray for you. उसकी चाबी यह है कि पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने दे. Because the Spirit of God is the only one who prays according to the perfect will of the Father. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है. See, all the other languages have selfish requests. हर एक भाषा में कुछ ना कुछ खुद के बारे में प्रार्थना होती है. Sometimes it is centered around yourself. बहुत बार वो हमारे खुद के विषय में ही केंद्रित रहती है. But every prayer that the Holy Spirit makes is centered around Christ Jesus. लेकिन हर एक प्रार्थना जो पवित्र आत्मा करता है वो यीशु मसीह पर केंद्रित होती है. So when I ask the Spirit of God, wonderful Holy Spirit of God, help me pray. जब मैं पवित्र आत्मा से कहता कि हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए कि मैं प्रार्थना करूं. Saints, when He starts helping you, the Father becomes very real.
और जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर पिता हमारे लिए जीवित हो जाते हैं। And you are praying for hours and hours and hours, you are not getting bored. और हम फिर घंटों तक प्रार्थना करते रहेंगे और हमें बोर नहीं होगा। And when the Spirit of God has helped you to pray, और जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है प्रार्थना करने के लिए, you have touched heaven. आपने उस समय स्वर्ग को छू लिया। He is the one who's been helping you. वो है जो आपकी मदद कर रहा है। See, the Spirit of God is not going to help you unless asked. देखिए, पवित्र आत्मा जब तक आप उसको बुलाओ, उसको मदद नहीं मांगोगे, आपकी मदद नहीं करेगा, Because he is a thorough gentleman. क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। He needs to be asked. उसको जरूरत है कि वो उससे पूछा जाए। Remember, he is a person. याद रखिए, वो एक व्यक्ति है। He is not fire, he is not smoke, he is not storm. No. वो आग नहीं है, वो बादल नहीं, वो एक आंधी नहीं है। He is a glorious person, just like the Father and just like the Son. वो पिता और पुत्र के समान एक व्यक्ति है। The Godhead is like the sun in the sky. परमेश्वर इस आकाश के समान है। No, the Godhead, the Father, Son, and the Holy Ghost are like a sun in the sky. जो पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो त्रैक्य है, जो वो इस आकाश के समान है, सॉरी सूर्य के समान है। The sun is like the Father. जो सूर्य है वो पिता के समान है। The light that comes out of it is the Son of God. जो प्रकाश आ रहा है वो पुत्र के समान है। And the heat that you feel is the Holy Ghost. और जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो पवित्र आत्मा के समान है। So you have the sun तो हमारे पास है सूर्य as the Father, जो पिता को दर्शाता the है, light that comes out of it उसमें से जो प्रकाश आ रहा है वो यीशु मसीह को as the Son of God, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। and the heat that you feel और जो गर्मी हमें महसूस होती है is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। The Father is the great commander. पिता है वो आदेश देने वाला। He is the one who said, "Let there be light." उसने आदेश दिया, उसने आज्ञा दी कि प्रकाश हो। Let there be light. उसने कहा प्रकाश हो। Let us make man in our image, after our likeness. उसने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। Who is the our? Who is the us? The Father, Son, and the Holy Spirit. वो हम कौन थे? वो थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So Jesus, he is the administrator. He is the one who make things happen. और यीशु मसीह वो है एडमिनिस्ट्रेटर के समान जो सारी चीजें को करते हैं। God the Father, he is the great commander. He says, "Let there be light." पिता उस आदेश आज्ञा देने वाले के समान है जिसने कहा कि प्रकाश हो। Jesus, he is the one, he does what the Father has said. और यीशु मसीह वो है जो पिता ने जो कहा वो करते हैं। That's why Jesus said, "I came to do the will of my Father." इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूँ। The Holy Spirit is the one who manifests what Jesus does. और ये पवित्र आत्मा वो है जो यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसको प्रकट करते हैं। All three are one. तीनों एक है, All three work in unison. तीनों एक साथ काम करते हैं। There is no competition in the Godhead saints. उन तीनों में कोई कंपटीशन नहीं है। But the Holy Spirit is the one who always magnifies Christ Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह को प्रकट करेगा, उसको महिमा देगा। Because Jesus said, when the Spirit of truth has come, He will glorify me. He will take up what is mine and shall reveal it to you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और वो मुझे महिमा देगा और मेरे पास जो है मुझसे लेके वो तुम्हें देगा। Now saints, how many want to know what Jesus has in store for you? कितने लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास आपके लिए क्या है? Because Jesus spoke about the Holy Ghost. He said that He will take up what is mine and He will reveal it to you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा और तुम्हें प्रकट करेगा। He will not speak anything of His own authority, but whatever He hears from the Father and the Son, He will reveal it to you. और उसने कहा कि वो खुद की बातें नहीं बताएगा, लेकिन जो कुछ वो पिता से सुनता है वो तुम्हें बताएगा। And when I want to know what the Lord Jesus has in store for me and what the Father has in store for me, I got to ask the Spirit of God to reveal what Jesus has in store for me. इसलिए अगर मुझे जानना है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या इच्छा है तो मुझे पवित्र आत्मा से पूछना पड़ेगा। The scripture says, "No eye has seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him." वचन ऐसा कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है जो कानों ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखी है, ऐसी बातें परमेश्वर की आत्मा प्रकट करती है। But God has revealed them unto us by His Spirit. ऐसी बातें कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये बातें केवल परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. क्योंकि आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को खोजता है। So if you want to know what God has got in store for you,
look at the Holy Ghost and ask Him to reveal it to you. अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर के पास परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है, तो आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी और होगी. आपको पवित्र आत्मा कभी बोलेगा नहीं, पहले ऑफरिंग दे तभी बताएगा. तो होली स्पिरिट विल नॉट टेल यू कि यू गो गिव फर्स्ट ऑफरिंग देन आई विल टेल यू. He reveals to us freely, the scripture says. वचन कहता है कि वो मुफ्त में हमें सारी चीजें प्रकट करता है. The Holy Spirit is the one who reveals Christ Jesus. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करता The है. Holy Spirit will reveal God's plan for you and for me. पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है वो प्रकट करेगा. Hallelujah. हालेलुया. You know, saints, I see a big circle around the Holy Spirit. मैं एक बड़े सर्कल को देखता हूँ पवित्र आत्मा के चारों ओर. The Holy Spirit standing at the center पवित्र आत्मा मध्य में है, खड़े हैं, and protected by the Father, the Lord Jesus Christ and the church. जिसकी सुरक्षा पिता, पुत्र और कलीसिया ये कर रहे हैं. The Holy Spirit is the one who is the most sensitive person. पवित्र आत्मा का काफी संवेदनशील व्यक्ति है. He can be grieved just like that. वो खिन्न हो सकते हैं. You know, the scripture says in the book of Isaiah chapter 63 verse 10. Please open to Isaiah 63 verse 10. यशायाह 63 उसका 10वां वचन पढ़ेगा. This is God talking about the Israelites, what they did to the Holy Spirit. यशायाह 63 उसका 10. इसमें लिखा है कि इस्राएल के लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ क्या किया. Yeah, please read it. यशायाह 63 उसका 10. तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा. My goodness, खुदा आपका शत्रु हो गया तो अभी कौन हेल्प करेगा? If God himself is your enemy, then who will help you? And the Bible declared the Israelites, they vexed his Holy Spirit. That's why God said, I'm turning against you, I become your enemy. यहाँ पर लिखा है कि इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खेदित किया, इसीलिए परमेश्वर उनका शत्रु हो गया. Can you imagine if God becomes your enemy, who will deliver you? क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर खुद आपका विरोधी हुआ तो आपको छुटकारा कौन देगा? And the word of God declares that they vexed his Holy Spirit and God turned against them and became their enemy. और वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को खेदित किया और इसीलिए परमेश्वर उनका शत्रु हो गया. The Son of God, when he was there on the earth, he said that every sin will be forgiven. जब यीशु मसीह धरती पर थे उन्होंने कहा कि हर एक पाप क्षमा किया जाएगा. But he who blasphemed the Holy Spirit shall never be forgiven, not only in this age but also in the world to come. लेकिन जो कोई परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो उसको ना केवल इस धरती पर लेकिन स्वर्ग में भी उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा. Can you imagine Jesus saying that my blood will cleanse every sin, but this one sin it can never cleanse? That is blasphemy against the Holy Spirit. यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन एक पाप जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलेगा उसको माफ नहीं कर सकता. And then I see Peter the apostle looking at Ananias and say that how has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and the man drops dead. जब पौलुस ने देखा कि पौलुस ने उससे कहा कि तो कैसे दुष्ट ने तुझे तेरे मन में डाला है कि तू पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोले. Then I see Paul pleading with the church of God, do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Spirit of God, do not resist the Holy Spirit. पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को तुम खेदित मत करो, उसका विरोध मत करो. पौलुस ऐसा कहता है. I see the Holy Spirit protected from all the sides by the Father, the Son and the church. मैं ऐसा देखता हूं कि पवित्र आत्मा की सुरक्षा पिता, पुत्र और कलीसिया ऐसे कर रहे हैं. You know, the Spirit of God can grieve when we don't forgive. The Spirit of God can grieve when we don't forgive. पवित्र आत्मा खेदित हो सकता है अगर हम माफ ना करें तो. There are many times we grieve him. बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको खेदित करते हैं. Many a time we resist him. बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसका विरोध करते हैं. But no more. लेकिन अब से नहीं. Hallelujah. हालेलुया. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं. For we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. हमने बंधत्व का आत्मा नहीं पाया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाया है जिसके द्वारा हम अब्बा पिता करके पुकारते हैं. You know, the Holy Spirit is not only upon the earth, but is in heaven also. क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा केवल धरती पर नहीं है लेकिन वो स्वर्ग में भी है? क्या आप जानते हैं? The scripture says it. वचन कहता है. Where can I go from your spirit?
मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? Where can I flee from your presence? मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ जाऊँ? भागकर कहाँ जाऊँ? If I ascend into heaven, you are there. अगर मैं स्वर्ग में जाऊँ तो वहाँ तू है। If I make my bed in hell, you are there. अगर मैं नरक में जाऊँ वहाँ भी तू है। If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall the hand lead me and the right hand shall hold me. अगर मैं समुद्र में जाकर भी बसूँ तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा। The Spirit of God fills the heavens and the earth. पवित्र आत्मा, उसका जो परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्ग को और धरती को पूरा भर देता है। Job said, the Spirit of God has made me and the breath of the Almighty giveth me life. अय्यूब कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जीवन का श्वास दिया। The Word of God declares, it's not by might or by human effort, but it's by the Spirit of the living God. वचन कहता है कि सामर्थ के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Remember, He's a person. याद रखिए कि एक व्यक्ति है। Just lift your hands to the Lord. I sense the anointing. अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, मैं अभिषेक को यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। I don't want anybody to get disturbed. The presence of God just मैं नहीं came. चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो यहाँ पर पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति के साथ में। The presence of God just came so strong in the church, in the house. परमेश्वर का आत्मा बहुत गहराई से इस चर्च में, इस कलीसिया में आया है। Make sure that you don't move. Please take your seats. Everybody, please take your कोई seats. इधर उधर ना हिले, बैठ जाइए अपनी जगह पर। Talk to the Spirit of God. पवित्र आत्मा से बात कीजिए। Say, Holy Spirit of God, कहिए, पवित्र आत्मा, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I need you. मुझे आपकी ज़रूरत है। You are the Lord of my life. आप मेरे जीवन के परमेश्वर हो। You are my comforter, my leader, and my teacher. आप मेरे सांत्वन देने वाले, मेरी अगुवाई करने वाले, मेरे शिक्षक हो। Help me to fellowship with you, Lord. मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके साथ सहभागिता करूं। Teach me to fellowship with you. मुझे सिखाइए कि मैं आपके साथ सहभागिता कैसे करूं। Help me know what you love. मुझे मदद कीजिए कि मैं जानूं कि आपको क्या पसंद है, And help me know what you hate. और मुझे ये मैं जान सकूं कि आपको कौन सी चीज़ों से नफरत है। I cannot please Jesus with my strength. मैं मेरे खुद की क्षमता से यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकता, But Spirit of God, you are my helper. लेकिन पवित्र आत्मा, आप मेरे मददगार हो। You are my strengthener. आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हो। You are my advocate. आप मेरे वकील हो। Help me know Jesus better. मुझे यीशु मसीह को बेहतर जानने में मेरी मदद कीजिए। I can never know the Master apart from you, Lord. मैं मसीह यीशु को आपके बिना नहीं जान सकता। Help me live a life that is fully pleasing to you. मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए कि जो पूरी तरह से आपको प्रसन्न करे, ऐसा जीवन जीने के लिए मेरी सहायता कीजिए। Holy Spirit of God, help me love you. परमेश्वर की आत्मा, मेरी सहायता कीजिए। Because you are more real than anybody else on the earth, Lord. आप मेरे लिए इन धरती पे सबसे ज़्यादा जीवित, सबसे ज़्यादा सत्य, सबसे ज़्यादा रियल आप मेरे लिए हो। Church, this is the time to talk to the Holy Spirit of God. ये समय है कलीसिया कि आप पवित्र आत्मा से बात कीजिए। The book of Revelation says that, come Lord Jesus, come. प्रकाशित वाक्य कहता है कि यीशु मसीह आ, यीशु मसीह तू आ। The Spirit and the church says, come. आत्मा और कलीसिया कहती है कि तू आ। It's not only the church, but the Holy Spirit and the church both are saying to the Lord Jesus Christ, come. केवल कलीसिया नहीं, लेकिन कलीसिया और पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु मसीह तू आ। Even so, come Lord Jesus, come. वैसे ही प्रभु यीशु तू आ। Wonderful Holy Spirit of God. सुंदर पवित्र आत्मा, अद्भुत पवित्र आत्मा, Wonderful Spirit of God. अद्भुत पवित्र आत्मा। These many years I've ignored you, Lord, so much. इतने सालों तक मैंने आपको इग्नोर किया प्रभु। I tried to do things with my own strength, Lord. मैंने खुद की क्षमता से चीजें करने का प्रयत्न किया। Why you are always there with me. आप मेरे साथ हमेशा बने थे, फिर भी मैंने खुद के प्रयासों से सब कुछ करने का प्रयत्न किया। But blessed Holy Spirit of God, no more. लेकिन अब आज से नहीं प्रभु। But you are the one who strengthens me. खुद की क्षमता से नहीं, लेकिन प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब करूंगा, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य देते हो। Help me know how do I fellowship with you. मेरी सहायता कीजिए कि मैं जानूं कि आपके साथ सहभागिता कैसे की जाती है, Because you said it in your word. क्योंकि आपने आपके वचन में कहा The fellowship of the Holy Spirit be with you all. कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। Help me, blessed Holy Spirit of God. मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for the Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। Can we all just stand up in His presence? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं उसकी उपस्थिति में?
The presence of God is awesome in the house. Thank you, उसकी Lord. उपस्थिति काफी अद्भुत रूप से इस जगह पर है। Holy Spirit of God, help us worship the Lord. पवित्र आत्मा सहायता कीजिए कि हम यीशु मसीह की आराधना करें। Lift your hands and just worship Him. The Holy Ghost अपने is हाथों को here. ऊंचा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। Holy Spirit. Wonderful Holy Spirit, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, There are a lot of people over here. बहुत से लोग यहाँ पर हैं, Their finances are stuck. उनके जो आर्थिक आशीर्वाद है, जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है, वो एक जगह रुकी हुई है। We're going to command the angels to go and get the money that has been stuck. हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वो जहाँ का आपके पैसा रुका हुआ है, वो वापस आपके पास आए। And we're going to see the testimonies in the days to come. और आने वाले दिनों में हम इसकी गवाहियों को देखेंगे। Angels of God, I speak to you in the name of Jesus. परमेश्वर के दूतों में यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ। Come on, open your mouth and talk to your angels. अपने मुखों को खोले और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे। They are the one who does the bidding. They are the ones who helps you. वो है जो आपकी मदद करते हैं। Are they not ministering spirits sent forth to minister? क्या वो परमेश्वर के जो दूत है वो आपके लिए भेजे नहीं है कि आपकी मदद करे? Yes, I already see testimonies lined up. मैं बहुत सारे गवाहियों को देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो आ रही है। Come on, command your angels. Your angels is next to you, standing next to you. आपके स्वर्गदूत आपके बगल में खड़े हैं, उसको आप आज्ञा दीजिए। And there are thousands of them. और हजारों की भीड़ में स्वर्गदूत आपके साथ में खड़े हैं। Angels of God, I speak to you in the name of Jesus. स्वर्गदूतों मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। Get the money in the name of Jesus. पैसे को लेकर आओ यीशु
के नाम से Loose your finances in the name of Jesus. आपके आर्थिक आशीर्वादों को खोल देता हूँ यीशु के नाम से। Every money that has been stuck be released in the name of Jesus. हर एक पैसा जो रुका हुआ है वो यीशु के नाम से मैं खोल देता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Father. हालेलुया पिता। Now just lift up your hands and just thank the Lord. It is done. अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए क्योंकि ये हो चुका है। Thank you, Jesus. यीशु को धन्यवाद Thank दीजिए। you, Lord God. धन्यवाद पिता। Hallelujah, Father. हालेलुया पिता। Oh, we give you praise, हम Father. आपको स्तुति देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory to your name आपके forever. नाम को महिमा हो प्रभु। Worthy is the Lamb. वो मेमना योग्य है। Worthy is the Lamb that was slain वो मेमना जो वध किया गया था वो योग्य है। before the foundation of the world. इस सृष्टि के रचे जाने से पहले जो मेमना वध किया गया था वो योग्य है। To you be the blessing and glory and honor and power and majesty forever. केवल आपको ही महिमा आदर सारा मान आपको मिले। Hallelujah, Father. हालेलुया पिता। Thank you, Lord. धन्यवाद। I want Brother Sam, sister, and your sister, to come and stand in front of me. Thank you, Jesus. Isn't the prophetic an awesome gift from the Lord to edify the body of Christ, saints? क्या भविष्यवाणी का दान अद्भुत नहीं है कि उसकी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दिया है। I pray every people in the church will prophesy. मैं विश्वास करता कि हमारे कलीसिया का हर एक जन भविष्यवाणी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Okay, sister, I saw you. मैंने आपको आपके दोनों हाथ ऊपर थे ऐसे, और मैंने आपने जो हाथ ऊपर किए थे जब मैं घर पे देख रहा हूँ, आपके हाथों के बीच में मैंने प्रोफेटिक वर्ड देखा। प्रोफेटी आपको ना लॉर्ड प्रोफेटिक में चलाएगा, परमेश्वर को भविष्यवाणी के वरदान में चलाएगा। और मैंने आपको एंड आई सॉ यू प्रोफेसाइंग इन योर फैमिली, इन योर हाउस होल्ड। मैं देख रहा हूँ कि आप आपके घर में आपके लोगों के लिए आपके परिवार के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो। प्रोफेसाइंग इन पीपल्स लाइफ whom you meet, आप जिनसे भी मिल रहे हो उनके ऊपर आप भविष्यवाणी कर रहे हो। all your acquaintance, आपके साथ में आसपास के लोग, your near and dear ones, आपके परिवार के लोग, and God is bringing all that prophetic word to pass. और जो कुछ आप परमेश्वर आपके द्वारा भविष्यवाणी के रूप में बोलेगा वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। It's going to be very powerful. बहुत सामर्थ्यशाली होगा। This prophetic word that will flow out of you will heal thousands of them. जो आपका भविष्यवाणी का शब्द आपके मुख से निकलेगा वो हजारों को छुटकारा देगा। And the more you start fellowshipping with the Lord, और जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ में सहभागिता करोगे उसके साथ में समय बिताओगे, you have warring angels visiting your life. पर उसके स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे, आपके साथ सहवास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I see also praying over the phone, and the prophetic word is just coming to manifestation. She's praying over the phone and the prophetic word comes into और मैं manifestation. देख रहा हूँ कि आप फोन पर बोल रहे हो और भविष्यवाणी का वरदान वहाँ पर प्रकट हो रहा है। And the power of God is very strong upon you. और परमेश्वर की सामर्थ बहुत गहरे रूप से आपके ऊपर है। And the other gift will automatically follow. और बाकी के वरदान अपने आप उसके पीछे आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So I saw you're going to visit 3 countries. मैं देख रहा हूँ कि आप 3 देशों में जाओगे। Yeah, the Lord didn't tell me the name of the country, but 3 countries you'll visit. 3 देशों में आप जाओगे। परमेश्वर ने मुझे नाम नहीं बताया लेकिन ये बताया कि आप 3 देशों में और जाओगे। In fact, I'll put it this way: those 3 countries are waiting for you, और लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वो 3 देश आपकी राह देख रहे हैं and you'll excel in your workplace, और आपके काम की जगह पर आप उत्तम रहोगे and you'll get stronger and stronger in the Lord. और आप परमेश्वर में और बढ़ोगे और गहरे रूप से बढ़ोगे। God will start using you in the workplace. परमेश्वर आपका आपके काम की जगह पर आपका इस्तेमाल करेंगे। Christ Jesus will be magnified in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में उसकी महिमा होगी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, Brother Sam, I saw you sitting at the banks of the, it can be a river or a sea, I don't know, but you're sitting at the banks of the river. मैं एक जो नदी है उसके बाजू में आपको बैठे हुए देखता हूँ। And you're casting the hook. और आप उसको फेंक रहे हो। And you catch only one fish at one time.
आप उस हुक को फेंक रहे हो और एक समय पर आप एक मछली को पकड़ रहे हो, But those fish that you catch, they are jumbo size, giant fish. लेकिन एक एक मछली एक काफी बड़ी है जब जिसको आप पकड़ रहे हो, And in the neck of the giant fish, you find coins. और उस मछली के गले में आप सिक्के को आपको वो सिक्के आपको मिल रहे हैं। There is an economic boom that is coming into your life. Amen. वो एक Hallelujah. इकोनॉमिक बुक है वो आपको मिल रही है। I believe you're going to catch all business tycoons. और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आप उनको पकड़ रहे हो, You're not going to throw the net, but you're going to take them one at one time. आप जाला नहीं फेंकोगे, आप हुक को फेंक रहे हो, एक एक करके उनको पकड़ रहे हो। And if it is a hook, there are zero chances of escaping. और अगर हुक है तो वो आपसे बच के नहीं जा सकते, Nets, it can escape, जाल में से वो बच के जा सकते हैं, but the hook is in the mouth. लेकिन जो हुक है वो उनके मछली के मुंह में पकड़ा And जाता I है। saw you drawing such big fish और मैंने देखा कि आप बड़े बड़े मछलियों को आप वैसे पकड़ रहे हो, with coins in their neck. उनके गले में कॉइन है, सिक्का है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yeah, you can go back to your place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The album is going to rock nations. आपका जो एल्बम आएगा वो सारे देशों को प्रभावित करेगा। The Lord will help. The Spirit of God is going to help you accelerate. परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद कर रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए, Because nations are waiting to hear the voice of the Lord, the word of the Lord through those songs. क्योंकि सारे देश परमेश्वर की वाणी को उसके वचन को आपके गानों के द्वारा सुनने के लिए तत्पर है। It's going to kindle fire in all even the so-called local churches. उसके द्वारा उन गानों के द्वारा जो लोकल चर्चेस है उनमें एक आग आएगी। When they are played in the tapes, when they are played in the church, the Spirit of God will usher into those churches. और जब वो गाने को बजाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा उस चर्चेस में आएगा। The word of God will be quickened in that tape. पवित्र परमेश्वर का आत्मा उनके वहां उस जगह पर जीवित होगा And will set the captives free. और जो बंधुआई में उनको छुटकारा देगा And will heal the brokenhearted. और जो टूटे दिल के हैं उनको चंगा करेगा And will restore lives. और जो जीवनों को वो जोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. We give you praise, Father. आपको स्तुति देते हैं We प्रभु। thank you for everything that you have done in this place, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए जो आपने इस जगह पर किया। As we have vowed that we will give you the glory, हम वचन देते हैं प्रभु की महिमा हम आपको ही देंगे, we will give you the honor, हम आपको ही आदर देंगे, we will give you the praise. हम आपको ही स्तुति देंगे। In Jesus' name, Papa. यीशु के नाम से पिता, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I'd like to call upon Pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। जितने लोगों का बर्थडे है ये मई के महीने में, वो सब सामने आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जन्मदिन जिनका भी है और शादी का सालगिरह है, ऐसे जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाइए। कौन कौन है? मेरा प्रिय पत्नी भी है ना, हमारा भी शादी का सालगिरह है। हमारे लिए कोई तो प्रार्थना करे। ब्रदर, यू प्रे फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father God, I surrender all these people who are gathered here. हम सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपके हाथों में सौंपता हूँ And may your spirit be upon them. कि आपका आत्मा उनके ऊपर रहे, And we pray for all of them. और हम अब उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं For those who are celebrating their birthdays this month. जो इस महीने उनका बर्थडे उनका जन्मदिन मना रहे हैं, For those who are celebrating their anniversaries this जो month. उनकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, We lift them up to you. हम उनको आपके पास लेकर आते हैं And Lord, may your power flow through them. कि होने दीजिए प्रभु कि आपकी सामर्थ उनके द्वारा बहे, That your spirit may work through each and every one of them. कि आपकी आत्मा उनमें से हर एक के द्वारा काम करे, That they will shine bright कि वो तारों के समान चमके, प्रकाशमान हो, as the brightest light that anyone has seen. कि ऐसा प्रकाश जो कभी किसी ने देखा नहीं, And that they be very, very fruitful. और बहुतायत से वो फल लेकर आए, That their fruit will be seen by everyone and recognized by everyone. कि उनका फल हर एक देखे और हर एक जाने कि परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है।
that everyone may recognize that this fruit is from God, कि हर एक जन जाने कि ये प्रतिफल, ये फल परमेश्वर की ओर से है, and that your name be glorified through them. और आपका नाम उनके द्वारा महिमा को पाने पाए। Father, we believe you have awesome plans for them. प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके इनके लिए, हर एक के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, And that you are drawing their spirit towards these plans. और आप उनको उनके प्लान, उनके योजना की ओर उनका आत्मा लेकर जा रहा है। And that there is coming a time और एक समय आ रहा है where they are going to just walk in your ways कि वो आपके मार्गों पर चलेंगे and glorify your plans through them और आपकी जो योजना है उसको वो महिमा मिलेगी, and reveal who you are to the world. और वो प्रदर्शित करेंगे, वो दिखाएंगे कि परमेश्वर कौन है उनके द्वारा, And that whatever they do, और जो कुछ वो करेंगे the fruit of their life उनके जीवनों का फल will be made known to the world, वो इस धरती पर, इस धरती के लोगों को दिखेगा, and they will be a blessing to this earth, और वो ये सारे लोग इस धरती पर एक आशीर्वाद होंगे, and that they will be known because of their fruit, और वो उनके फलों के द्वारा जाने जाएंगे, and because of that your name will be glorified और through them. इसके द्वारा, इनके जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलेगी। Father, may they completely walk in your love प्रभु, वो आपके प्रेम में पूरी तरह से चलने पाए, and spread your gospel to everyone they meet, और आपका सुसमाचार वो जिनसे भी मिलते हैं उनको बताने पाए, that you will lift them up, कि आप उन्हें उठाकर खड़ा करोगे, that everyone will see them हर एक उनको देखेगा and glorify your name. और आपके नाम को महिमा देगा। Thank you, Jesus. We धन्यवाद यीशु, pray in Jesus' name. यीशु के Amen. नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आखिरी गीत गाएंगे हम लोग, चलो ठीक है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर
मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे।